اپنے اسی ٹاپک کو واپس لے کر آئیں گے جو پچھلے دنوں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سٹاپ کیا ہے. یہ ٹاپک ہے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اردو میں بولیں تو مسیح کی آمد ثانی، اور ہندی میں بولیں تو یسوع کا دوسرا آگمن. میں کوشش کروں گا کہ ہم سب جو ہے سمجھ سکیں. میں چاہے تھوڑی باتیں آپ سے کروں، میں کوشش کروں گا کہ ہم ساری زبانوں میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. سو آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل، لوک چیپٹر 17 ادھیائے اس کا 26ویں اور 27ویں ورس کو دیکھیں گے. لوک چیپٹر 17 ورس 26 and 27. میں آپ کے لیے اس آیت کو، ان دونوں آیتوں کو اردو میں پڑھوں گا. خدا کا کلام کہتا ہے، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. آمین. میرے عزیزو، اکثر ہی یسوع کے شاگرد یسوع مسیح سے پوچھتے تھے کہ تو کب دوبارہ آئے گا، کب تیری بادشاہی ہوگی، دنیا کا آخر کب ہوگا، دنیا ختم کب ہوگی، دنیا کا اینڈ کب ہوگا. یہ سوال یسوع کے ساتھ کیے جاتے تھے. تو یسوع اپنے شاگردوں کو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا جو ہم نے پڑھا ہے. یسوع نے چند نشانیاں اپنے شاگردوں کو بتائیں. سب سے بڑی نشانی یسوع مسیح نے بتائی جو ہم نے پچھلے دنوں جس پر غور کیا. یسوع مسیح نے کہا کہ زیتون کے درخت کو دیکھو، دیکھتے رہو. زیتون اسرائیل کو، یہودی قوم کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر دوسرا بڑا نشان جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یسوع مسیح نے اپنی دوسری آمد کے لیے، سیکنڈ کمنگ کے لیے جو بتایا، دوسرا بڑا نشان وہ نوح جو ہے، جو نوح کے ٹائم میں ہوا. یسوع نے کہا کہ میرے آنے، ابن آدم وہاں پر اردو کا جو لفظ ہے، اور ہندی میں کہیں گے آدم کا پتر، ٹھیک ہے. اور یسوع نے کہا کہ میرے آنے کا نشان جو ہے وہ جیسے نوح کے دور میں ہوا ویسا ہی ہوگا. جتنے بھی بائبل سکولرز ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں جو اسپیشلی نبوت پر، پروفیسیز پر بات کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ ہم کون سی پروفیسی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو زمین پر ہیں یہ کس پروفیسی کا وقت ہے، جو پرانے عہد اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پروفیسی ہے. تو جواب یہی ملتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نوح کی ٹائم کی جو پروفیسی ہے، ہم سیم اسی ٹائم سے گزر رہے ہیں جو نوح کا ٹائم ہے. آمین. نوح کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ کھاتے پیتے تھے. پہلی بات یاد رکھیں، کیا تھا؟ یہ نشانیاں ہیں.
ان میں سے چند باتیں تو ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ آج ہم چند باتوں کو دوبارہ سے سیکھیں گے اور پرانی باتوں پر بھی کچھ پر غور کریں گے۔ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، اور نوح کا جو ٹائم تھا اس وقت لوگ بڑے کھاؤ تھے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں، آپ آج کے ٹائم کو دیکھیں جس ٹائم میں ہم ہیں، کرونا وائرس میں ابھی تھوڑا آپ ہوٹلز ریسٹورنٹس کو دیکھتے ہیں وہ بند ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا، کئی ہوٹلز میں کیا ہوتا تھا، میں 91 اور 91 سے لے کے تقریباً 2000 تک میں نے ریسٹورنٹس میں کام کیا۔ پاکستان کے لاہور کے جو بڑے اچھے ریسٹورنٹس ان میں نے کام کیا، اور بعض کا تو حالانکہ وہاں پر 200-400 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی، ٹیبل بھرے رہتے تھے، چیئرز بھری رہتی تھی، لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے رہتے تھے، لوگ لائنوں میں لگے رہتے تھے تاکہ ان کی باری آئے۔ آپ ملیشیا میں بھی دیکھتے ہیں جب لوگ KFC پہ جاتے ہیں، میک ڈونلڈس پہ جاتے ہیں، یا ایسے ہی کوئی فوڈ چین جو انٹرنیشنل اور لوکل بھی ہیں، میں نے ملیشیا میں بھی یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ کھانے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں۔ اتنی زیادہ کھانے کی آئٹمز ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی، ہر روز نئی چیز کا تجربہ۔ اور لاک ڈاؤن میں تو لوگوں نے بڑی بڑی ریسپیاں دیکھی ہیں، آج تو ٹیلی ویژن بھی جو ہے، یوٹیوب بھی جو ہے، وہ کھانے کی نئی چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ سننے میں عام سی بات لگتی ہے کہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، کہ یہ کوئی بہت بڑی بات لگتی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نشانی بتائی میرے آنے پر، لوگ کھانے پینے کے پیچھے کھاتے پیتے ہوں گے، کھاؤ ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں لوگ اتنے کھاؤ ہیں، اور میں لاہور سے میرا تعلق ہے، لاہور کا مطلب ہے لیا ہور، جنہ کھا لیے، اگر کوئی پوچھے تو نہ نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے لیا ہور۔ تو آج لوگوں کا یہی حال ہے، ادھر کھانا کھاتے ہیں، گھنٹے کے بعد پھر وہ کھاتے ہیں، اور پھر ڈرنکس ہیں، مختلف طرح کے ڈرنکس آ گئے ہیں، اتنے ڈرنکس ہیں، ہزاروں کی تو ڈرنکس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کئی تو اتنا پی لیتے ہیں نالیوں میں گرے ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ کھاؤ اور کھانے پینے کے شوقین ہیں کہ کھا کے اپنا برا حال کر لیتے ہیں۔ جو زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویکینڈ پہ کئیوں کو پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے، کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ لوگ اتنے کھاؤ ہو گئے ہیں، اور یہ یسوع کے آنے کی نشانیوں میں سے جو نوح کے دور میں تھی ایک ہے۔ سیکنڈ، بیاہ شادی کرتے ہوں گے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو سب سے پہلی شادی جو کرنے والا شخص تھا، جس نے انسان کی شادی کی، وہ خدا خود تھا۔ خدا نے خود آدم اور حوا کا نکاح پڑھایا اور ان کو ہسبینڈ اور وائف کہا۔ آدم کو اور حوا کو، ایڈم اینڈ ایو کو۔ عزیزو، بہت ساری باتیں تو ہمیں ہسٹری بائبل میں ملتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں جو ہسٹری کی ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا نہیں ہے۔ اگر آپ بک آف جینیسس ہندی میں بولیں یا پنجابی میں بولیں، اتپتی کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 6 جب آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر انسانوں کی شادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے بیٹے، سن آف گاڈ اینڈ ڈاٹر آف مین، وہاں پر ان کی شادی کا ذکر کیا گیا ہے۔
نوح کے ٹائم پر لوگ شادی کرتے تھے. شادی وہ عام شادی نہیں کرتے تھے. جو خدا نے قانون بنایا تھا, خدا نے جو قانون بنایا تھا وہ آدم اور ہوا, ایڈم اور ایو, مرد کی اور عورت کی شادی ہوتی تھی. پر نوح کے دور میں کیا ہو رہا تھا, وہاں پر بدکاری ہو رہی تھی. جو نوح کے دور میں لفظ لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے یعنی کہ سن آف گاڈ آئے اور انہوں نے انسان کی بیٹیاں دیکھی اور ان سے شادی کی. وہاں پر جو لفظ شادی ہے ایکچولی ہبرو میں جو ہے, جو اس کا صحیح مطلب فرق ہے. انہوں نے کیا کیا, وہاں پر لکھا ہے کہ جو اس کا صحیح ٹیکسٹ ہے وہ ہے ان کے ساتھ ریپ کیا. اور اس دور میں یہ جو بڑے زورآور پرسنالٹیز تھیں, انہوں نے جب عورتوں کو دیکھا, نہ صرف کنواری لڑکیوں کو بلکہ شادی شدہ کو, اور بائبل بیان کرتی ہے, خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اس کو مہا پاپ کہا جائے گا, سب سے بڑا گناہ بدکاری. نہ صرف جوان کنواری بلکہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ ریپ کیا. نہ صرف ان کا ریپ کیا بلکہ زبردستی ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. یہ ہسٹری بتاتی ہے. جب آپ یہودی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ ان شادیوں کو جو لفظ دیتے ہیں وہ شادی نہیں, ایکچولی ریپ ہے, اور زبردستی شادی شدہ اور کنواری عورتوں کو اپنے گھروں میں ان شخصوں نے رکھ لیا. میں اس بات کی بحث نہیں کرتا کہ وہ شخص کون تھے, فالن اینجلز تھے یا وہ انسان تھے, اس پر ہم پھر کبھی بحث کریں گے. لیکن جو بھی وہ پرسنالٹی تھی, انہوں نے اپنے زور سے کمزور آدمی کی بیوی کو اٹھایا, کمزور آدمی کی بیٹی اور بہنوں کو اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا. آج بھی اگر دیکھیں تو سیم اسی طرح ہے جو اس ٹائم میں ہوا, جو نوح کے ٹائم پر ہوا. آج کے ٹائم میں بھی ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کیسا ہو رہا ہے. ہر طرف جو ہے, ہر ملک, ہر قوم, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کرسچنز جو ہے وہ ریپ نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کسی پر الزام لگا سکتے کہ اس قوم میں یہ زیادہ ہوتا ہے, اس دھرم میں یہ زیادہ ہوتا ہے, یہ نیشن, یہ قوم جو ہے اس گناہ میں زیادہ ہے. آج ساری دنیا میں یہ ہوتا چلا جاتا ہے, ہر ملک میں. خدا نے قانون بنایا تھا کہ آدم اور ہوا کی شادی ہو, ایڈم اور ایو, مرد اور عورت کی شادی ہو. پر نوح کے دور میں نہ صرف عورتوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی, عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے, گناہ کرتے تھے. گے اور لیسبیون کا یہ جو کام ہے یہ آج کے دور کا نہیں ہے, اس ٹائم کا نہیں ہے, یہ اسی ٹائم سے چلا آتا ہے. اور آج آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں نے گے میرج کو جو ہے وہ اس کو الاؤ کر دیا اپنے ملکوں میں. خدا کے قانون کو بدل کے رکھ دیا ہے انسان نے. خدا کے کلام, اس کے زندہ کلام وچن کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے, ڈرتے نہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ آخری دور میں لوگ کھاتے پیتے ہوں گے اور بیاہ شادی کرتے. شادیاں کیسی خطرناک شادیاں ہو رہی ہیں, مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں. یہ کتوں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں. اور کینیڈا میں تو یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ
जानवरों के साथ शादी की जा सकती है। ये मैं क्रिश्चियंस कंट्री की आपको बात बता रहा हूं और ये यीशु मसीह के आने का वक्त है। मेरे अजीजों, दिन बुरे हैं। मत्ती की अंजील की मैथ्यू चैप्टर 24 जो है वो में बताता है, यीशु ने कहा कि दिन बुरे होंगे, आखिर में दिन बड़े बुरे होंगे और बुराई अपनी हदों को पार कर जाएगी। जानवरों के साथ बदफेली, शादियां। और मैं स्विट्जरलैंड के लिए सुन रहा था, वहां पर तो लड़कियां घोड़ों से शादी करती हैं और क्लबों में घोड़े को लेकर जाती हैं और अपनी दोस्तों को कहती हैं मेरे मिस्टर से मिलिए। मेरे अजीजों, जो नूह के दौर में हुआ वो आज भी हो रहा है। नूह के दौर में भी उन्होंने खुदा के कलाम को उल्ट दिया। खुदा ने कानून बनाया एडम और ईव, आदम और हवा की शादी हो, और उन्होंने बदकारी की, गुनाह किया, पाप, इसे महापाप कहेंगे। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मेरे अजीजों, और फिर नूह के दौर में तीसरी बात, तीसरा बड़ा निशान, वहां पर अगर आप जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश 6 बाब को देखें तो वहां पर जो तीसरा बड़ा निशान है वो है कि जमीन पर इंसान बहुत बढ़ गए। पॉपुलेशन जो है, आप कहेंगे कि ओवर पॉपुलेट हो गई ये जमीन। उस दौर में अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री को देखें, जो यहूदी समझते ना बहन जी, ज्यूज, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, तालमुद और मिशना, और अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आप दंग रह जाएंगे, आप शौक हो जाएंगे। उस वक्त जमीन की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, मैंने पहले बताया हुआ है, जिनको पता है वो जरा खामोश हैं, किन किन को पता है। नूह के टाइम में पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन थी याद है किसी को? ये आर्कियोलॉजिस्ट और जो ज्यूज यहूदी हिस्ट्री है उसको जब हम देखते हैं, हमें इस हिस्ट्री में पता चलता है कि उस वक्त नूह के टाइम में जमीन पर 7 से 8 अरब लोग थे। अरब कहें तो क्या कैसे बोलेंगे? ट्रिलियन, ट्रिलियंस, 7 to 8 ट्रिलियंस पॉपुलेशन थी, इतनी बड़ी, और बड़ी तेजी से ये काम हुआ। बड़ी तेजी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी। और मैंने पहले भी बताया कि जो कुछ बातें तो हम हिस्ट्री से ले रहे हैं, जो बाइबल की हिस्ट्री साथ साथ चलती है, कुछ चीजें बाइबल की हैं। तो नोहा के टाइम पर 7 से 8 अरब, 7 to 8 ट्रिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी। और उस दौर में क्या हो रहा था, ये हिस्ट्री है, लड़कियों की तादाद जो थी वो ज्यादा थी। जो लड़कियां पैदा होती थी उनकी जो रेशो थी वो ज्यादा थी। और अगर हम आदम को देखें तो आदम की जो हिस्ट्री है, ये भी यहूदी हिस्ट्री में से लिया गया है। आदम के 56 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 23 बेटियां थी। याद रखिए, ठीक है? मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी नोटबुक साथ लेकर आएं। जब भी आप
चर्च जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सुनने वालों से, देखने वालों से, अपनी नोटबुक ज़रूर साथ लेकर जाएं। बाइबल तो लेके जाएं, पेन कभी ना भूलें, क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ पेन याद नहीं रहता, तो जब किसी दूसरे को, साथ वाले को कहें तो उनके पास भी नहीं होता। तो आप नोट करें। और फिर एक शुक्र है कि हमारे पास ये मीडिया है, मीडिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आप मोबाइल से आप मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप नोट करें। आदम के 56 बच्चे थे, 56, और जिसमें से 23 उसकी बेटियां थी। मेरे अजीजों, नूह के टाइम पे लड़कियां ज़्यादा पैदा होती थी। आज के दौर में भी अगर आप देखें, जो पूरी दुनिया को जब आप सर्वे करें तो आदमियों से, लड़कों से ज़्यादा जो है अब लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नोहा के टाइम पर हुआ, नूह के दौर में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। हम वेलकम करते हैं अपने भाई अमर को, बेटी अफशीन उनकी वाइफ को, और बेटी हुसैना को, जो छोटा नन्हा फरिश्ता हमारे दरमियान में है। सो आज फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ है, हम तालियों से इनको वेलकम कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम देख रहे हैं कि आखिरी दौर की जो दूसरी बड़ी निशानी है, यीशु ने लूका की इंजील 17वें बाब की 26 और 27वीं आयत में कहा कि जो नूह के टाइम पे हुआ, नूह के दौर में हुआ, वही खुदावंद यीशु के आने के टाइम पर होगा। और पहली जो हमने निशानी देखी वो ये कि ज़मीन पर लोग खाते पीते होंगे। नूह के टाइम पर लोग खाने वाले, खाऊ पेटू हो गए, और आज हम भी खा खा के तोंद निकलती आती है, पर इस चीज़ की परवाह नहीं, खा खा के प्रेशर हाई कर लेते हैं, शुगर हाई हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियां ये खाने पीने से है। दूसरी जो हमने बात देखी, याद है क्या है? दूसरी बड़ी निशानी शादी। नूह के दौर में लोग शादी ब्याह करते थे। मैंने बताया कि जो शादी के लिए एक्चुअली जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे शादी नहीं हुआ, वहाँ पे लफ्ज़ रेप हुआ है। और रेप भी कैसा कि इंसानों के साथ और जानवरों के साथ रेप होता था। और आज भी आप देखें, इंसानों के साथ और जानवरों के साथ रेप, पूरी दुनिया को आप देखें तो ये एक समझे जैसे विस्फोट होता है, इस तरह से है। हर तरफ आपको यही चीज़ नज़र आएगी। लोग जो हैं इतना बदी को पसंद करते हैं और खुदा से डरते नहीं। और तीसरी बात जो फिर मैंने बताया, आप इस मैसेज को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो तीसरी बात जो हमने देखी है कि ज़मीन पर इंसान बढ़ गए, तकरीबन 7 से 8 मिलियन, 8 अरब। और आज भी जितनी पॉपुलेशन है, तकरीबन हम 8 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। सेम अगर आप देखें तो पॉपुलेशन भी सेम है, और जो कुछ नूह के दौर में हुआ वही मेरे अजीजों आज के दौर में हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम इस नबूवती दौर में, जिस नबूवती दौर में हैं, उसको हम कह सकते हैं कि हम नोहा के नबूवती दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि यीशु के आने का वक्त करीब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, एक और आखिरी बात हम इसके बाद देखेंगे। जब ये सारी चीजें जमीन पर हो रही हैं, फिर भी लोग डरते नहीं, लोग डरते नहीं। उस वक्त भी नूह चलाता रहा, नूह चीखता रहा, नोहा
नोहा डालता रहा, ठीक है। इंग्लिश का लफ्ज है ना नोहा, नूह का नाम नोहा है, और उर्दू में जो नोहा है उसको वावेला कहते हैं, रोना, ठीक है ना। पंजाबी की कहा मम्मी जी वावेला ही है ना, वैन पाना जिमें, ठीक है ना, ठीक है ना। जो कोई मर जाता है तो असी वैन पाने ना, तो नोहा तो बेचारा नोहा ही डालता रहा, रोता रहा, और 120 साल का अरसा लगा, 120 ईयर्स वो इवेंजलिज्म करता रहा, लोगों को बताता रहा कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, जमीन बर्बाद हो जाएगी, जमीन बर्बाद हो जाएगी, जमीन का खात्मा हो जाएगा, इंसान का खात्मा हो जाएगा, जमीन का नहीं, इंसान का जमीन से खात्मा हो जाएगा। वो चलाता रहा, 120 साल का अरसा लगा, कोई खुदा से ना डरा, कोई खुदा से ना डरा, किसी को खुदा के कलाम से डर नहीं लगा। वो गुनाह करते गए, खुदा की मुखालफत करते गए। और उस दौर में पता क्या कहते थे नूह को? नूह को कहते थे ये पागल बुड्ढा है, बाबा पागल हो गया है, और कहते थे कोई खुदा नहीं। क्योंकि जो चौथी चीज जो उनके उस दौर में हो रही थी वो ये थी कि उनका इल्म खुदा ने बढ़ा दिया था, उनका इल्म, नॉलेज जो था वो बढ़ गया था। ये जो पिरामिड, आप मिस्र के पिरामिड, कितने लोगों को पता है मिस्र के पिरामिड का? लोग सोचते हैं कि ये जो पिरामिड जो है ये मिस्र का कल्चर है, ये मिस्रियों ने बनाए हैं। एक्चुअली जब आर्कियोलॉजिस्ट इसको स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को देखा कि ये तो मिस्रियों की कल्चर बनने से पहले के हैं, मिस्री थे भी नहीं जब कि ये पिरामिड हैं। और यहूदी हिस्ट्री जो बयान करती है पिरामिड का जो मतलब है वो है नूह, टावर ऑफ नोक, एनोक, टावर ऑफ एनोक। ये जो पिरामिड का मतलब है, जो वहां मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, उसका जो मतलब है वो है टावर ऑफ एनोक, यानी कि नूह का सतून या खंबा। ये उस दौर के हैं जब नूह खुदा का बंदा, एनोक जमीन पर था। और आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए मुख्तलिफ तरह की सोच रखते हैं। एक सोच जो यहूदी हिस्ट्री है वो ये बयान करती है कि ये नूह ने बनवाए थे और खुदा ने जो था उस दौर के लोगों को विजडम दी कि वो इस तरह की चीज़ों को बना सके। उस दौर में नॉलेज, इल्म जो था वो बहुत बढ़ गया, और नूह के टाइम पर, नोहा के टाइम पर लोगों ने अपने इल्म, अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। और आज भी अगर आप देखें तो लोग अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी वो कहते थे कि कोई खुदा नहीं, आज भी वो कहते हैं। आज अगर आप देखें जो लोग यूरोप गए हैं, आपने देखा होगा, मैं तो गया नहीं, लेकिन कभी कभी जब कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो वहाँ पर अक्सर बसों पर और बड़े बड़े बोर्ड और बैनर लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि कोई खुदा नहीं, खुदा है ही नहीं, कोई खुदा नहीं। अपने आप को ही खुदा समझते हैं। आज भी ये मैं क्रिश्चियन मुल्कों की बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं खुदा कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, साइंस सब कुछ है। और जब ये पिछले दिनों जुलाई का बाद, शायद जुलाई से थोड़ा पहले, जब न्यूयॉर्क में कोरोना का थोड़ा हल्का हुआ, लोग
ठीक होना शुरू हुए, कोरोना थोड़े लोगों को अफेक्ट कर रहा था, तो टीवी पर न्यूयॉर्क के मेयर को बुलाया गया ताकि वो इंटरव्यू दे और बताए सारी सिचुएशन को। तो सवाल जो एंकर था, टीवी एंकर, वो उस मेयर से कुछ सवाल कुछ करता था, पर मेयर का जवाब कुछ और ही था। मेयर ने कहा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये क्रिश्चियन मुल्क के मैं लीडर्स की बात करता हूँ, न्यूयॉर्क के मेयर ने ये बात कही, कोरोना को हमने शिकस्त दी है, कोरोना को हमने डिफीट किया है, शिकस्त दी है, खुदा ने नहीं। और मेरे जीजो, उसके बाद फिर कोरोना जो है वो एकदम से जैसे बम फटता है अमेरिका के अंदर, ये दोबारा से जो है वो तेजी से फैलना शुरू हो गया। मेरे जीजो, आज इल्म तो बहुत बढ़ गया है, पर लोग कहते हैं कि खुदा नहीं। और उस दौर में भी इल्म बढ़ गया था और वो बदी करने शुरू हो गए। उन्होंने अपने इल्म, अपने नॉलेज को जो है वो बदी के इस्तेमाल में लेकर आए, ना कि खुदा के जलाल के लिए। आज भी आप देखें, YouTube पर पोर्न फिल्मों को बड़ा पसंद किया जाता है, फहश फिल्मों को बड़े शौक से लोग देखते हैं, हर तरह की लड़ाई झगड़े की फिल्मों को बहुत देखा जाता है। और बच्चे जो कार्टून देखते हैं, जो ड्रोनी फिल्में देखते हैं, हॉरर मूवी, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, बहुत सारी टीमें, बहुत सारे ग्रुप्स लगे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, ये दुनिया का आखिर है। और यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी ज़माना में दिन बुरे होंगे। लोग फिर भी डर के तौबा नहीं कर रहे। नूह के दौर में भी उन्होंने तौबा नहीं की। कितने लोग बचे थे नूह के दौर में? 8, सिर्फ 8 लोग। नूह का घराना कोई भी नहीं बचा था। आप कह सकते हैं किसी ने खुदा के कलाम को सुन के डर के अमल नहीं किया। सब लोग जो थे मेरे जीजो, उन्होंने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की और डरे नहीं। पर अब यीशु मसीह आने वाला है, अब हमें ज़रूरत है हम डरें उस अजाब से जो आने वाला है। एक चीज़ कह के मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु मसीह ने मैथ्यू 24 चैप्टर में बताया कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि ये ऐसा मुश्किल का दौर होगा, ऐसा मुश्किल का दौर, ऐसी मुसीबत का दौर, जब से इंसान बना है ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। अब आप देखें, ये मुसीबतों का शुरू हो चुका है। कितने लोगों की जॉब नहीं है। जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग रोते हैं, पास्टर जी कुछ करें। पास्टर जी तो दुआ ही कर सकते हैं। पास्टर जी जॉब नहीं, पास्टर जी ये मसला। कोरोना एक छोटी सी चीज ने दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया की सुपर पावर जो है वो घुटनों पर आ गई। दिन बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। बुरे दिन आ रहे हैं मेरे अजीजों। तैयारी करें, यीशु के आने की तैयारी करें। बहुत सारे लोग, मसीही लोग सोचते हैं यीशु पापा बहुत अच्छा है, यीशु डैडी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बड़ा सॉफ्ट है। ऐसे ही हम सोचते हैं। अब तक यीशु सॉफ्ट है, पर अब यीशु वैसे नहीं आएगा जैसे पहले आया था। अब तो यीशु किंग ऑफ किंग बनकर आएगा। अब यीशु इंसाफ करने के लिए आएगा। और उसकी झलक जो है हमें नजर आती है। यीशु के एक शागिर्द
जिसको बुक ऑफ रेवलेशन दी गई। यूहन्ना आरिफ यीशु का सबसे लाडला चेला था, डिसाइपल था, छोटा भी था, लाडला भी था। यीशु के सीने पर वो अक्सर लेटा करता, जैसे बच्चे गोद में बैठते थे ऐसे ही यीशु के साथ वो प्यार करता था। लेकिन जब यीशु आसमान पर चला गया और जब यूहन्ना आरिफ बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा, 90 उसकी तकरीबन एज थी, 60 साल के बाद जब यीशु को दोबारा देखा तो लिखा है कि उसने उस यीशु को देखा जो दुनिया का इंसाफ करने को आने वाला है, जो आज खुदा के कलाम को सुनते नहीं, जो आज उसके लिए तैयार नहीं होते। आज फिर वो उस सूरत में आएगा जो यूहन्ना आरिफ ने देखी। और यूहन्ना आरिफ ने जब उस यीशु को देखा जो बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ ग्लोरी है, जब उसको उसने देखा, जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, जो इंसाफ करने वाला है, तो उसकी आंखें उसकी बर्दाश्त ना कर सकी। यूहन्ना आरिफ की आंखें उसे बर्दाश्त ना कर सकी। उसका जिस्म जो था वो उसके अंदर जान ना रही और वो एकदम से मुर्दा सा होके गिर पड़ा। यीशु मसीह की आमद ऐसी होगी, जब वो आएगा तो कहेंगे वो लोग जो उसके कलाम को सुनकर कबूल नहीं करते थे, यानी कि जो उसको सताते हैं, जो उसके कलाम को कबूल नहीं करते वो उसको सताते हैं, वो कहेंगे जब यीशु बादलों पर आएगा तो वो कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें उस खुदा के बर्रे की आंख से और उसके जलाल से, उसके तेज से, उसकी ग्लोरी से हमें बचा लो। मेरे अजीजों, तब कोई मौका नहीं होगा। आज दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों और अपने खुदावंद को, अपने मालिक को वेलकम करें। जिन्होंने आज तक अपने गुनाह से तौबा नहीं की, मेरे अजीजों, वो अपने गुनाह से तौबा कर लें। मेरा और आपका खुदा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद आने वाला है, बड़ी कुदरत के साथ आने वाला है, बड़ी